come to the third. We have come to the third journey, which is very almost coming to climax situation. And there are many things involved here in this journey. It's going to be. Sorry. Yeah, ma. It went mute. Okay. So no journey was easy or exciting. Of course, there were quite exciting moments as far as ministry was concerned in the first two journeys, but this thing was totally different. मैं आशा करता हूं कि हम लोग प्रेरितों के काम के अध्ययन को आनंदित हैं उसके विषय में और उसका लुत्फ उठा रहे हैं। और आज जिस विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा है, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं और आज उसके हम एक चरम भाग को देखने जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि जितनी यात्राओं के विषय में हम देखते हैं जो पौलुस ने मिशनरी यात्राएं की हैं, उन सभी यात्राओं में कुछ ना कुछ भिन्न है और कुछ ना कुछ नया है। और इस यात्रा में भी परमेश्वर ने हमारे सीखने के लिए अद्भुत चीजों को रखा है। My voice is audible, right? Yeah, it's very clear, Saurabh. Thank you. And then some Bible scholars, some commentators also see a fourth missionary journey. There some people say there is another journey apart from this third journey. और कुछ धर्म वैज्ञानिक या बाइबल के जो ज्ञाता हैं वो कहते हैं कि ये तीसरी मिशनरी यात्रा के अलावा एक चौथी मिशनरी यात्रा भी रही है। But we don't have clear evidence or scriptural support for that opinion or for that position. लेकिन इस चौथे मिशनरी यात्रा के विषय में हमारे पास बाइबल से कोई पक्के प्रमाण या इतिहास में कोई पक्के सबूत जो है वो उपलब्ध नहीं है। But still there are few scholars and commentators who would write about fourth missionary journey, but that's not our concern anyway today. हालांकि कुछ बाइबल के ज्ञाता और कुछ बाइबल के लेखक इस बात को लिखते हैं और वो बताते हैं कि चौथी मिशनरी यात्रा भी हुई थी। चाहे जैसा भी हो, ये हमारा मुद्दा आज का नहीं है, लेकिन हम अपने इस तीसरी मिशनरी यात्रा के विषय में आज सीखेंगे। Yeah, but however, there are some very dramatic events that have taken place at the end of the Paul's life, his own life. Like, he was facing Jewish elders, officials, and even Roman emperors. That's where, from this chapter onwards, particularly after 20th chapter, 21st chapter, particularly 21st chapter onwards, things were taking a dramatic move. Turn. और जब हम लोग 20वें अध्याय से आगे हम इस मिशनरी यात्रा को देखेंगे तो जो कुछ पौलुस सामना कर रहा है वो यहूदी अगुओं के शासकों के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है, रोमी शासकों के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो एक प्रकार से देखें तो ये जो उसकी यात्रा है उसमें कई प्रकार के एक नाटकीय कर्ण या नाटकीय भाग है जो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। Yeah. Now we come to the 20th chapter where Paul was giving a very important message, particularly from chapter 17 onwards. और अब हम 20वें आयत में आते हैं और इस 20वें आयत में हम देखते हैं पौलुस एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश को दे रहा है और विशेषकर जब हम 17वें आयत से आगे पढ़ते हैं तो उस संदेश को हम सीख सकते हैं। Yeah, last week we have studied in the 20th chapter, particularly the 7th verse onwards, how Paul was speaking over a night and where a young man fell from the window and he was dead, but Paul brought him back to life. और the name is Eutychus. Yeah, name of the young man was Eutychus. पिछले सप्ताह हम जो अध्ययन कर रहे थे वो 20वें अध्याय के 7वें आयत से आगे हम देख रहे थे जहां पे एक रात पौलुस प्रचार कर रहा था और उसका प्रचार करने के दौरान में एक जवान व्यक्ति जो है वो ऊपरी कोठरी से गिर जाता है और वो अपने प्राण को खो देता है, लेकिन पौलुस प्रार्थना के द्वारा उसे वापस जीवन में ले आता है और उस व्यक्ति का नाम इत्यकुस है। And Paul was having a great desire, a passion to go to Jerusalem. That is one of the highlights
in these chapters, and particularly something which was there in his heart. और इस अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस के अंदर में, उसके मन में एक तीव्र इच्छा है यरूशलेम जाने की। Yeah, we will read that in 16. Before Pentecost, he wanted to go to Jerusalem. From Passover to Pentecost, there were 50 days gap. So before that, he wanted to reach there. That was his plan and desire. और 16वें आयत को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यरूशलेम जाने की जो इच्छा है, पौलुस की जो यरूशलेम जाने की इच्छा है, वो वहां पे व्यक्त किया गया है। फसह के पर्व से लेकर पिंतेकुस्त के पर्व के बीच में 50 दिन का समय होता है और पौलुस उस दौरान यरूशलेम जाने की इच्छा करता है। He has almost made up his mind. He almost packed his luggage to go to Jerusalem. That was the context. On the other hand, we also will see, at least on 2 occasions, there were people who were telling him not to go to Jerusalem. और यरूशलेम जाने की तैयारी पौलुस पहले से ही कर चुका था। उसने अपने सामान को एक तरह से बांध लिया था। लेकिन हम देखते हैं ऐसा 2 बार, कम से कम ऐसा 2 बार पौलुस के जीवन काल में हुआ है यात्राओं के दौरान, जब लोग उसे मना किए हैं कि उस स्थान को या फलाना स्थान में मत जाना। You will read it in 21st chapter, 4th verse. And there the disciples, they said, you better not go to Jerusalem. You are inspired by the Spirit. Through the Spirit, they were telling. And on another occasion, in the 10th verse, same chapter, 21st chapter, there was a prophet by the name Agabus. He also was almost indicating through some image, telling him, you better not go to Jerusalem. और हम देखते हैं 21 अध्याय के 4थे आयत में, जहां चेले आत्मा की अगुवाई प्राप्त करने के बाद पौलुस को ये बोलते हैं कि वो यरूशलेम न जाए। वो बात 21 के 4 में लिखी है। और फिर एक अवसर और आता है 21 के 10 में, जब एक भविष्यवक्ता जिसका नाम अगबुस है, उसने किसी प्रकार के एक छवि को देखकर पौलुस को सतर्क किया कि वो यरूशलेम न जाए। So in between these 2 events, there is the message that we are going to study this evening that Paul gave at Ephesus to the elders of the Ephesian church, recorded in 20th chapter verses 17 to 38. तो अपने यरूशलेम जाने की इच्छा जो कि वो 20 अध्याय में करता है, और उसके बाद 21वें अध्याय के इन दोनों अध्यायों के बीच में हम देखते हैं पौलुस इफिसस की कलीसिया को या इफिसस के लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, जो कि 20वें अध्याय में जो कि व्यक्त किया गया है। And this message that he delivered to the elders of the church at Ephesus was again a very remarkable, very heart-touching, and quite inspiring, and even very informative. And not only that, it was a model sermon, model message. और हम देखते हैं ये जो संदेश पौलुस इफिसस के प्राचीनों के लिए देता है, इसका एक बहुत महत्व है, और ये एक आदर्श संदेश है जो पौलुस यहाँ पे इफिसस के प्राचीनों के सामने प्रस्तुत करता है। And for your information, Luke, who has written this book, and again, a Gospel according to Saint Luke, these 2 books were written by Luke. So this Luke records at least 8 messages given by Paul in the book of Acts. So he identifies, or he records for us those 8 messages. तो इस पुस्तक का जो लेखक है, जैसा हमने शुरू में कहा था, लूका, जिसने लूका रचित सुसमाचार भी लिखा है, तो लूका हम देखते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में पौलुस द्वारा प्रचारित 8 संदेशों को वो यहाँ पे इस पुस्तक में लिखता है। Yeah, you just listen, or if you want, you can write down, or somebody can type it in the chat box. First message was Acts 13, chapter 14 to 43. This is what we see after Antioch. From Antioch, he moved out and he gave this message in the first missionary journey. पहला संदेश जो लूका व्यक्त करता है, जो पौलुस द्वारा लिखा गया है, वो लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 42 आयत से 48 आयत में
जहां पे अंताकिया में पौलुस अपने पहली मिशनरी यात्रा के दौरान इस संदेश को देता है। 1342 to 48, राइट सर? 14 to 43. लूका प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 14 आयत से लेकर 43 आयत तक, माफ करिएगा आप उसको सुधार सकती हैं। प्रेरितों के काम 13 उसका 14 से लेकर 43 आयत तक। Yeah, I typed it here. You can see 13, 14. And the second one is 14th chapter, 14 to 18. और जो दूसरा संदेश पौलुस द्वारा प्रचार किया गया है वो 14 प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 14 से लेकर 18 आयत। Yeah, you can see that in the chat box where Vijay is typing for us. And the second one is 14 to 18. This, Vijay, it is not journeys, it's messages, sermons that he gave. Yeah. And now the third one is again 17 chapter 22 to 34. 17, 22 to 34. और जो तीसरा संदेश जो पौलुस ने प्रचार किया है वो 17 अध्याय उसके 22 से लेकर 34 आयत तक। And then now the present sermon which we are going to study to the Ephesian church elders, 20th chapter, 17 to 18. 17 to 18, 17 to 38, sorry. जो चौथा संदेश जो लूका ने पौलुस के द्वारा प्रचार करने के दौरान रिकॉर्ड किया है, लिखा है, वो है 20 अध्याय के 17 से लेकर 38 आयत में। चौथा संदेश 20 का 38 आयत। This evening we are going to learn very important lessons from this sermon. It's not an easy one to preach because there are a lot of practical things that Paul has mentioned about his own personal life and ministry. और ये अध्याय ये आयत से आज हम सीखने जा रहे हैं और ये आसान नहीं है क्योंकि पौलुस इन संदेशों में अपने जीवन के अनुभवों के और बहुत ही प्रायोगिक बातों को यहाँ पे उल्लेखित करता है, लिखता है और जिन्हें जानना और जिन्हें सीखना बहुत जरूरी है और ये चुनौतीपूर्ण भी है। It's not at all easy because Paul, a great missionary, a great evangelist, a great pastor, he looks quite pastoral here. He speaks like a pastor in this message. It's not easy to mention these things. He was such a good exemplary. He was a great model. और पौलुस जब इस प्रचार को करता है जिसको आज हम देखने जा रहे हैं तो याद रखिएगा इस तरह के प्रचार को करना आसान नहीं होता है। वो बहुत ही अनुभव के साथ और प्रायोगिक बातों को यहाँ पे लोगों को और खासकर प्राचीनों को सिखाने की कोशिश करता है और वो अपने आप को एक आदर्श के रूप में और एक असाधारण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हुए इन बातों को सिखाने की कोशिश करता है। And not only me, for that matter, any preacher, any pastor, it's very difficult to identify ourselves with Paul, like how he mentioned here in this text. और ये हमारे ही लिए क्या किसी भी प्रचारक के लिए ये कठिन होगा क्योंकि जिस प्रकार से पौलुस ने अपने आप को यहाँ पे प्रस्तुत करते हुए इस संदेश को बताया है या इस संदेश को प्रचार किया है, ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और ये हमें एक चुनौती देता है और इसका अनुकरण करने के लिए हमें एक बुलाहट भी देता है। So now let us consider, let us go into the text. There are three parts. We can see three different parts in this message, three phases or three parts. तो इस प्रचार का इस संदेश को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं या इसके तीन भाग हम देखने जा रहे हैं। From 17 to 21 he was speaking about the past. 17 से लेके 21वें आयत में हम देखते हैं पौलुस जो है वो अतीत के बारे में बताता है। Because you will see that in verse 18 he says, from the first day that I set foot in Asia, from the first day of his ministry. That means he was speaking about the past. और 18वें आयत में हम देखते हैं पौलुस बताता है जब वो पहला दिन जिस दिन उसने आसिया में अपने पांव को रखा था, इसका मतलब ये है कि वो अतीत को स्मरण करता है। इसलिए ये जो भाग है 17 से 21 में पौलुस जो है वो जो बीता हुआ कल है या अतीत की बात को उनके सामने रखता है। And from now 20, that is 18 to 21, and from 22 onwards,
till 28. Okay, he is speaking about the present. और 22 से लेकर 28 के आयत के बीच में हम देखते हैं पौलुस वर्तमान की बात को बताता है। Yeah, you can see that, verse 22, it says, now behold. Now means always present tense. 22वें आयत में लिखा है अब देखो। इसका मतलब यह है कि वो वर्तमान को बताना चाहता है। अब का मतलब होता है जो वर्तमान काल है, वो अब जो है वो वर्तमान काल को दर्शाता है। And now from 28 onwards, or 28 to 38, he's speaking about the future. You will see that. Pay careful attention to yourself, to all the flock. And particularly 29, he says, I know that after my departure, that is about the future. और 28वें आयत से लेकर 38वें आयत में हम देखते हैं पौलुस जो है वो भविष्य के बारे में बताता है। और वो 28वें आयत में कहता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। और फिर आगे वो कहता है कि मेरे जाने के बाद, 29वें आयत में कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद। तो इन दोनों कथनों के द्वारा हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि पौलुस भविष्य की बात को 28 से लेकर 38 में बताता है। So let us consider how he really served, brothers and sisters. This is a great passage. Again, honestly, as far as I am concerned, it's, this is quite difficult to put ourselves in the shoes of Paul and speak all this, because he was saying, from first day I set my foot in Asia, you know how I have lived among you. और ये जो आयत है, एक बार फिर से भाइयों और बहनों मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत ही अच्छा प्रचार किया हुआ संदेश पौलुस के जीवन का है। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे सेवकाई के लिए और हमारे सीखने के लिए। और जब हम देखते हैं पौलुस 18वें आयत में 20 के 18 में कहता है कि तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया पहुंचा, तो वहां से पौलुस जो है अपने पहले दिन की सेवा से इस प्रचार को प्रारंभ करता है। He's saying, he was talking about his motives, his attitude, with all humility. Verse 19, you will see that with all humility I preached and I served. How I have served. The word service and serving is a key word here. और वो अपने प्रोत्साहित और अपने उद्देश्य को और उसका जो अभिप्राय है, वो उन बातों को स्पष्ट करते हुए बोलता है कि पहले ही दिन से मेरा अभिप्राय, मेरा उद्देश्य जो था वो तुम्हारे सामने स्पष्ट था। और 19 आयत में वो बताता है कि किस प्रकार वो बड़ी दीनता के साथ परमेश्वर के वचन को उनके सम्मुख लेकर आया था। Why I'm mentioning that word serve is the word probably you would recall, even the Lord Jesus also said, the Son of Man did not come to be served, but to serve. That is the word the Lord Jesus used as a motto for himself. And the same word we see here, even in Paul's ministry, how I have been serving you, serving, that attitude of servant. और पौलुस जो है 19वें आयत में सेवा, आप 19 के अंतिम भाग में देखेंगे, वहां पे सेवा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और ये वही सेवा शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया था जब वो कहता है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो दूसरों की सेवा करें, लेकिन आप वो दूसरों की सेवा टहल करें, इसलिए आया। तो वो जो सेवा शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, उसी सेवा शब्द को पौलुस भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए अपने अभिप्राय को और अपने सेवकाई के उद्देश्य को यहाँ पे वो स्पष्ट करता है। Why am I emphasizing on this is, I was reading one book. In that book, the man was writing, the commentator was writing, Paul was not like a religious celebrity, as many of the preachers and pastors are today, religious celebrity. They're making themselves great and they're appearing themselves, like a celebrity. Paul was not like that. Paul was always like a servant. और हाल ही में मैं एक कमेंट्री पढ़ रहा था, एक किताब पढ़ रहा था, वहां पे एक व्यक्ति ने इस प्रकार से बड़े ही खूबसूरती से उस चीज को लिखा है। और वो कहता है कि पौलुस जो था वो किसी धर्म का या मसीही धर्म का या मसीहत का कोई हीरो नहीं था या नायक नहीं था जो अपने आप का प्रकटीकरण या अपने आप का प्रस्तुतिकरण देना चाहता था।
लेकिन हम देखते हैं जिस प्रकार से आज बहुत से पास्टर और प्रचारक हैं, वो अपने आप की प्रसिद्धि चाहते हैं, अपने आप को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन इसके विरोधाभास में हम देखते हैं पौलुस अपने आप को एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है। Yes. So this is very careful these days in our ministries, sometimes even in our personal lives. I feel we need to be careful. Don't present yourself, don't project yourself, don't speak more about yourself, but preach the Christ in a very humble way. You are a servant. Remember that. इसीलिए आज हमारे सेवकाइयों में भी ये सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम जब भी प्रचार करते हैं या जब भी हम खड़े होकर बोलते हैं, तो हम अपने आप के विषय में प्रचार ना करें, अपनी बातों को प्रचार ना करें, लेकिन हम उसमें मसीह का प्रचार करने वाले हों। और याद रखें, हम सेवक हैं और हम एक सेवक का हृदय अपने जीवन में रखने वाले हों। And then he was also mentioning how I have been preaching, verse 20 to 21, both publicly and even house to house. How I have been visiting you, I have been sharing the gospel with you, और both फिर public and private. और पौलुस ये भी बताता है कि किस प्रकार से मैं सामूहिक रूप में भी सुसमाचार का प्रचार करता था और घर घर जाकर भी मैंने लोगों को सुसमाचार का संदेश दिया है। And then I did not hide anything. I did not keep anything aside. I gave you full, total plan of God. I gave you the full message, total message. और वो ये भी कहता है कि मैं कोई भी बात को तुमसे छिपाया नहीं हूं, लेकिन संपूर्ण सुसमाचार के जो संदेश है, जो संदेश मेरे मन में है, उसको पूरा का पूरा मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। And I did not have any partiality, but I spoke to Jews and I also spoke to Gentiles. To everybody, I gave the message. I treated everybody equal. और मैंने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, मैंने सबको एक समान देखा और मैंने यहूदियों को भी सुसमाचार सुनाया, मैंने अन्य जातियों को भी सुसमाचार सुनाया। And he also mentioned, you only know how I was preaching with tears, that passion and that desire, that burden, that I had in my ministry. और वो ये भी कहता है कि मैंने आंसू बहा बहा कर अपने सेवा के प्रति जो बोझ है उसको रखकर मैंने सेवा की और सुसमाचार का प्रचार किया। And he also mentioned about how he has undergone lot of trials and temptations and difficulties and very sad experiences. That also he mentioned. उसने ये भी बताया कि किस प्रकार वो अपने सेवकाई के दौरान चुनौतियों का सामना किया, सताव का सामना किया, परीक्षाओं का सामना किया और तकलीफों का भी सामना किया। And so from day one, from the first day till today, this is how I served you. This is how I preached the whole plan of God, total plan, without hiding anything. So definitely it was a very hard work, very difficult job, day and night, okay, publicly, privately, and he really served in such a great capacity. और पहले दिन से पौलुस इस प्रकार से अपनी सेवा को जो इसने लोगों को के प्रति किया था, उसको वो इस प्रकार से व्यक्त करता है कि पहले दिन से उसने बड़े विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन को सुनाया। उसके सामने चुनौतियां आई, परेशानियां आई, लेकिन एक सेवक का हृदय रखकर किसी भी बात को उसने सुसमाचार के संबंधित किसी भी बात को उसने छुपाया नहीं। उसके सामने चुनौतियां आई, तकलीफें आई, लेकिन उन सारी परिस्थितियों के बावजूद उसने बड़े विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन को और सुसमाचार को लोगों को सुनाया। Yes, before we go to the next section or next topic, I think we need to wait for a minute and reflect into our own lives and ministry. Suppose if I have to give that farewell address, farewell message, if I have to speak about something about my past life and past my ministry, what are those things that I have to mention? Will I be able to speak like this? We need to honestly evaluate or assess, reflect into our own lives and ministry. इसके पहले कि हम लोग अगले भाग में जाएं, मैं चाहता हूं हम लोग 1 मिनट का समय लें और अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकें और अपने मनों में सोचें कि अगर हमें अपनी सेवकाई के विषय में बोलना होगा, या मान लीजिए आप अपने सेवकाई के विषय में एक संबोधन दे रहे हैं और शुरुआत से लेके
आज तक आपकी सेवकाई में आपने किस प्रकार की सेवा की, अगर आपको इस बात को बोलने के लिए कहा जाए, तो क्या हम पौलुस के समान इस प्रकार से एक संदेश को, एक सामर्थी संदेश को अपने सेवकाई के विषय में दे पाएंगे? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय है और सीखने का विषय है कि हम अपनी सेवकाई को किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं और किस प्रकार से बांध रहे हैं। So, brothers and sisters, it's always important that we wait, we pause for a minute for some time, not only now, but even otherwise, maybe weekly once or monthly once or once in a year, to evaluate our own lives, how I have been doing, how I have been serving. Did I have a proper attitude? Did I really work hard? Did I really preach well? Did I really sufficiently taught people with the total plan of God? All these parameters, all those areas, it's always good to look into our own lives and reflect upon those things. तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमें भी अपनी सेवकाई में इस प्रकार के एक समय को लेकर, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अभी इस कार्य को करें, लेकिन अपने सेवकाई में आप आगे सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार या कोई एक अंतराल में आप अपने जीवन को, अपनी सेवकाई का मूल्यांकन करें, जांचें कि क्या मैंने अपनी सेवकाई में पर्याप्त समय दिया है, क्या मैं सही में परमेश्वर के वचन का पूरा प्रचार कर रहा हूं, क्या मैं विश्वास योग्यता पूर्वक सेवा कर रहा हूं। जिन बातों को पौलुस इस 17 से लेकर 21 में कहता है, उन बातों के आधार पर जांचने की कोशिश करें कि क्या मैं भी इसी प्रकार का एक सेवक हूं। तो इस बात को हम अपने जीवन में जरूर जांचें। Right. Now from 22 to 27, the second section, we see from now behold, from this time onwards, I'm going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there. और अब जो अगला भाग है उसे हम देखने जा रहे हैं, जो कि हमें 22 से लेकर 27 में मिलता है। 22वें आयत में पौलुस कहता है, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। But one thing he was very clearly mentioning, that everywhere, wherever I go, the Holy Spirit testified to me in every city that imprisonment and afflictions await me. There imprisonment and afflictions are waiting for me. लेकिन एक बात की निश्चयता पौलुस को यहाँ पे है, जो कि वो 23 पद में व्यक्त करता है अपनी भावनाओं को और कहता है, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। Look at the mindset of Paul here. See, knowing that these afflictions and imprisonments and sufferings are involved, it's there already. But still he was taking the step to go forward. He was not trying to take a step backward, but he is trying to take a step forward, going forward in such situation. यहाँ पे हम पौलुस की मनोदशा को देखते हैं कि उसको मालूम है कि जब वो यरूशलेम जाएगा तो वहां बंधन और क्लेश और तकलीफें जो है वो उसका इंतजार कर रही हैं। इन बातों को जानने के बावजूद भी वो यरूशलेम जाना चाहता है। वो अपने आप को उस सेवा में आगे की ओर लेकर जाना चाहता है, ना कि इन बातों को जानकर अपने आप को पीछे करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें यहाँ सीखने को मिलता है। And another testimony he is sharing in verse 26, we read that, and I'm blameless. None of your blood is upon me. I'm innocent of the blood all of you, because my conscience is very clear as far as preaching the gospel to you is concerned. I am just blameless. My conscience is very clear, and I'm not to be blamed. और पौलुस यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात को कहता है अपने विषय में, जो कि हमें 26वें आयत में मिलता है। वहां पौलुस कहता है, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। इसका मतलब यह है कि पौलुस बताता है कि जब सुसमाचार सुनाने की बात आती है तो वो अपने आप में किसी प्रकार के दोष को या द्वेष भावना को नहीं पाता है, और उसका जो विवेक है इस विषय में साफ है और उसे किसी प्रकार का दोष नहीं देता है। And what a blessing to say that, your blood is not upon me, is not upon me. I am not guilty conscience.
that I did not do a good job, I did not preach gospel to anybody. I'm very clear. The present conscience is very clear. That's how और he's हम speaking. देखते हैं और हम देखते हैं ये कितनी ही अच्छी बात है। एक व्यक्ति अपने विवेक के विषय में, अपने जीवन के विषय में कह सकता है, एक प्रचारक अपने सेवा के विषय में कह सकता है, जो पौलुस कहता है कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। इसका मतलब यह है कि अगर सुसमाचार सुनाने की बात आती है तो उसके मन में जरा भी शंका नहीं है कि वो अविश्वास योग्य रहा, लेकिन उसके मन में पूरा का पूरा आत्मविश्वास है कि उसने बड़े विश्वास योग्यता के साथ उस सेवा को पूरा किया है। So, friends, particularly those of us who are in the ministry like this, we need to have that clear conscience, where our conscience is very clear that I have really preached the gospel. I'm not guilty about it. That is again another present mindset or state, mental state of Paul. तो प्रियो, खासकर उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो सेवा में हैं, हमें भी अपने जीवन में अपनी सेवकाई के प्रति इस प्रकार के एक चरित्र को रखना बहुत जरूरी है। जैसा पौलुस कहता है कि सुसमाचार के विषय में उसका जो विवेक है वो उसे किसी प्रकार का दोष या उसके मन में किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं है। हमें भी अपने सेवकाई में इस प्रकार के एक आत्मविश्वास को रखना है और हमारा मन जो है किसी प्रकार का हमें दोष नहीं दे सके कि हमने सेवा के प्रति या सुसमाचार के प्रति किसी प्रकार की अविश्वास योग्यता रखी है, वरन हम विश्वास योग्य रहकर सेवा कर रहे हैं। So please keep one thing in mind, a day will come for all of us where we need to share this kind of things in our farewell address or farewell message, which means a time will come where you need to leave that place or that people, and how will you and I are going to speak on that day? That is the question here. और याद रखिएगा, हमारे सेवा में भी ऐसा एक समय आएगा जब हमें उस सेवा के क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान में जाना होगा, और जब आपको उस स्थान से जाना होगा तो आप अपने अंतिम संदेश में आपको कुछ तो कहना होगा। तब आप सोच के देखिए कि आप अपने उस अंतिम संदेश में, संबोधन में क्या कहेंगे और आपके प्रचार का या आपके संबोधन का विषय वस्तु क्या होगा उस दिन। And again, for the second time in verse 27, he was mentioning, like how he mentioned in verse 20, same thing. I did not hide anything without telling you. All the plan of God, all the counsel of God, I have been telling you. और 27वें आयत में एक बार फिर से वो इस बात को जोर देते हुए कहता है क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। मैंने परमेश्वर के उस उद्धार के कार्य को, उस उद्धार की योजना को पूरा तुम्हें बताया है, मैंने कुछ भी तुमसे छुपाया नहीं है। Now let's wait again for a second here and to see what is that plan of God, what is that total counsel of God, what does it mean? तो आइए हम एक बार फिर से यहाँ पे रुकें और इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करें। सवाल ये है कि ये परमेश्वर का पूरा जो योजना है या परमेश्वर का ये जो सारा अभिप्राय जो यहाँ पे पौलुस कह रहा है, ये परमेश्वर का सारा अभिप्राय है क्या? See, this is where it is important for all of us to know what it means. We need to have the knowledge of the plan of God. Maybe we can talk about doctrines, doctrinal aspect, foundational aspects of the truth about God, God's truth, that is scripture. So the scripture, we need to have the basic understanding of the scripture. We need to know what is there in the scripture, and we need to teach people what is there in the scripture. तो यहाँ पे हम देखते हैं जब पौलुस बोलता है कि ये परमेश्वर के सारे अभिप्राय के विषय में जब बोलता है, तो हमें भी परमेश्वर की इन योजनाओं को जानने की आवश्यकता है। हमें भी इसके विषय में ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है। केवल सिद्धांतों को जानना और सत्य को जानना जरूरी तो है, लेकिन इसके साथ साथ बाइबल में जो बुनियादी बातें दी गई हैं और विशेषकर परमेश्वर के उस योजनाओं के विषय में या परमेश्वर के विषय में जो बातें बताई गई हैं, उनको जानना और उनको लोगों को सिखाना, ये भी महत्वपूर्ण है। So knowing ourselves, knowing the truth for ourselves and teaching others and equipping others, telling them the truth of God, so this teaching aspect, teaching and training aspect of the ministry is very important.
तो सत्य को अपने आप में जानना और उसके बाद उस सत्य को लोगों को बताना, लोगों को सिखाना, प्रशिक्षित करना, ये सारी चीजें हमारे सेवकाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। So I would like to encourage all of us. Actually, what we are doing now, the study of Book of Acts, like this is very helpful. And I would also encourage you, you start teaching others, maybe some your youth group or other pastors or other elders. You take the responsibility of explaining the total whole counsel of God to people. और जिस प्रकार से अभी हम प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, मैं यही आग्रह करूंगा कि आप भी अपने अपने समूहों को, पासवानों को, विश्वासियों को इस प्रकार के प्रशिक्षण को दें, ताकि ये जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहे। And now let's move to the third section, that is from verse 28 to 38. और आइए अब हम तीसरे भाग में जाएंगे, जो कि हमें 28 से लेकर 38वें आयत में मिलता है। And the way here, the beautiful word that Paul was using to describe the church, he is saying the flock. Pay attention and yourselves to all the flock to which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which is obtained with his own blood. Very loaded, a lot of important, meaningful words are written here in verse 28 about the church. और 28वें आयत में हम देखते हैं पौलुस जो है वो भविष्य की बातों को लोगों को, प्राचीनों को बताता है। और 28वें आयत को हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और भेद भरे शब्द लिखे हुए हैं, इसीलिए आप बहुत ध्यान से इस 28वें आयत को पढ़ें। मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की, तो वो कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए एक बहुत खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल करता है और वो कहता है अपने झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। The first thing that we need to understand is he's very clearly mentioned the church of God, his church. Okay, how it has come into existence through the shedding of the blood of his own, his blood, his church and his blood. Please note down these two words. तो हम देखते हैं यहाँ पे दो शब्द हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलीसिया किसकी है? यहाँ पे लिखा है वो परमेश्वर की कलीसिया है। और ये कलीसिया अस्तित्व में कैसे आई? उसने अपने लहू को बहाकर इस कलीसिया को बनाया, तैयार किया। तो कलीसिया परमेश्वर की और लहू भी परमेश्वर का, ये दोनों शब्द को आप बहुत ध्यान दीजिएगा। Right. So now these words tell us basically the church and the ministry belongs to God. It is God's work. It's God's ministry. Church belongs to God. It is his church, not yours and not mine. इसीलिए ये जो दो शब्द हैं ये हमें स्मरण दिलाते हैं कि ये जो कलीसिया है और ये जो सेवा है ये हमारी या आपकी नहीं है, ये परमेश्वर की है, इसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। So we need to understand this. The owner, who is the rightful owner of the church, who is the owner of the ministry? It is God. He is the owner. It belongs to him. It is his church, his ministry. Ministry is God's. इसलिए हमें इस बात को स्मरण रखना है कि ये जो कलीसिया या ये जो सेवा हम कर रहे हैं, इसका मालिकाना हक जो है वो हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। परमेश्वर ने इसे तैयार किया है और इसका मालिकाना हक जो है वो परमेश्वर का है। So somebody was commenting, none of us are the founders of any ministry. We did not find any ministry. We did not found any ministry. God is the founder of all ministries. We are not the founders. और किसी ने इस प्रकार से एक कमेंट को, एक टिप्पणी को किया है कि किसी भी संस्था या किसी भी सेवकाई का जो जन्मदाता है या उसका जो स्थापक है वो कोई मनुष्य नहीं है, मैं और आप नहीं है, लेकिन कोई भी सेवा हो, कोई भी संस्था हो, उसका संस्थापक या उसका रचने वाला या उसको अस्तित्व में लाने वाला परमेश्वर है। Then what are we? What is our role in the church? If the church is God's, if the ministry is God's, and what are you and me? What is our role? तो सवाल यह है कि अगर
सेवा परमेश्वर की है और परमेश्वर ही स्थापक है, तो मेरा और आपका क्या जिम्मेदारी, हमारी क्या भूमिका है? The Bible tells us in verse 28, the Bible records, you and I are overseers. Overseer, there is another word by name, steward. We are the stewards in the ministry, in the church. और 28वां आयत जो है वो हमारी भूमिका को या हमारे कार्य को बताता है, और वो यहाँ पे जो शब्द है वो उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द है हम रखवाले हैं। और एक और शब्द इसी संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है, वो है हम भंडारी के रूप में तैनात किए गए लोग हैं। So God is the owner and God is the founder. Everything belongs to Him. You and I, we are the people who will take care of it, who will oversee it as stewards. इसीलिए याद रखें, परमेश्वर ही स्थापक है, परमेश्वर ही मालिक है। हमें और आपको एक रखवाले के तौर पे रखा गया है ताकि हम एक अच्छे भंडारी की नाई उसकी देखरेख करने वाले हों। So we need to play the role of the steward. Probably to explain you better the term steward, suppose if somebody has a house, he is the owner of the house and he is going to some America, some Dubai, somewhere, and he told you to take care of the house till he comes back. Maybe he'll come back after 5 years or 10 years. Okay, you need to take care of it. You need to supervise it. Okay, you are only the supervisor. Okay, that is the role you and I need to play in the church, in the ministry. तो इसको बेहतर समझने के लिए मान लीजिए ऐसा होता है कि हमारा एक पड़ोसी है जो अपने घर को हमारे हवाले छोड़कर वो कहीं विदेश में चला गया और वो हमसे कह रहा है कि भाई घर की देखभाल करना। तो जिस प्रकार से आप उस घर की देखभाल करेंगे, उस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, उस घर को देख रेख करेंगे, उसी प्रकार का कर्तव्य या उसी प्रकार की जिम्मेदारी जो है वो हमें सेवकाई के प्रति भी दी गई है। जब सेवकाई हमारे हाथ में सौंपी गई है तो एक अच्छे भंडारी की नाई हमें उसकी देखरेख करनी है। Yes. So just because you and I, we are not owners, we are only supervisors, we are only overseers, we are only stewards, is it because of we are not owners? Do we need to take it lightly? No, again, we cannot do it lightly. तो अगला जो महत्वपूर्ण बात इसमें है कि अब हम अगर मालिक नहीं है और हम अगर संस्थापक नहीं हैं, हम केवल रखवाले हैं, तो क्या फिर हमारी जिम्मेदारी कम हो जाती है या हम गैर जिम्मेदाराना स्वभाव अपना ले कि हाँ सेवकाई तो मेरी नहीं है, मैं मालिक नहीं हूं तो मेरी जिम्मेदारी कम हो जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। Yeah, again 70 to 21 comes back into the picture. That is how we need to behave. Okay, with a lot of hard work, with full heart, with passion, with burden, public, private, total counsel of God. So that's how we need to conduct ourselves. तो इस सवाल का उत्तर हम 17 से 21 में एक बार फिर से पाते हैं कि हमें किस प्रकार के एक रखवाले या एक भंडारी होना है। पौलुस कहता है कि विश्वास योग्य होकर, तकलीफों का सामना करके, चुनौतियों का सामना करके, आंसू बहाकर, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, हर प्रकार से विश्वास योग्य होकर हमें सुसमाचार का प्रचारक बनना है और सेवकाई की देखरेख करनी है। There is another aspect in verse 28. He is saying, pay careful attention to yourselves unto the flock. These two aspects are there. Take every care how you will conduct your life and how you will take care of the church. There are two aspects here. और यहाँ पे 28वें आयत के शुरुआत में पौलुस दो महत्वपूर्ण बात को बोलता है। वो कहता है अपनी और अपने कलीसिया की, अपने झुंड की चौकसी करो। इसका मतलब ये है, पौलुस ये भी कहना चाहता है कि अपने आप के आचरण को भी ध्यान रखना और अपनी कलीसिया, अपने झुंड की भी चौकसी करना। दो बातें यहाँ पे पौलुस सिखाने की कोशिश करता है। So as we have just said just now about the doctrine, about the truth, we are responsible. We need to teach them proper truth, proper doctrine. That is equipping the church. That's one aspect. Second aspect is about our own personal testimony, about our own personal lives. We need to take care in these two aspects. तो ये जो दोनों आयाम है, इसे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण
और बहुत ही महत्व के साथ आगे लेकर चलना है, दोनों को संतुलित करना है। पहला यह है कि हमें अपने झुंड को सिद्धांतों को सिखाना है, बाइबल की बुनियादी शिक्षाओं को देना है, उन्हें प्रशिक्षित करना है, उन्हें तैयार करना है, अपने सेवकाई की देखरेख करना है। ये एक आयाम है। इसके साथ ही साथ हमें अपने आप के व्यक्तित्व को और अपने आप के आचरण का भी ध्यान रखना है, और दोनों चीजें जो हैं वो परस्पर एक साथ चलनी है, एक साथ हमें संतुलित करने की आवश्यकता है। So there are possibilities, there are dangers that we may neglect one thing over the against other. For example, we may neglect about the teaching doctrine, truth, or we may be very good there, or we may neglect about our personal testimony, personal life, or we may take very good care of personal life and testimony. We may neglect the other way around. So that's where we need to strike the balance. और कई बार ऐसा हो सकता है कि हम एक को ज्यादा महत्व दे दें और दूसरे को नजरअंदाज कर दें। उदाहरण के तौर पे हो सकता है कि हम अपने आप का आचरण बहुत अच्छा अपना रखने वाले हो जाएं, अपना चरित्र जो है वो बहुत अच्छा रखने की कोशिश करें, और हम वचन की शिक्षाओं को, वचन के सिद्धांतों को लोगों को सिखाने में हम कमी कर दें। या हो सकता है कि हम वचन की शिक्षा तो बहुत अच्छी दें, लोगों को सिद्धांतों को बहुत अच्छा सिखाएं, लेकिन हमारा जो खुद की गवाही है, व्यक्तिगत गवाही है, उसकी ओर हम ध्यान न दें। तो ये दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। So verse 28 is the key. It is the crux of the matter. It's very loaded verse. Please meditate upon this 28th verse even more in your personal meditation. इसीलिए 28वें आयत में हम देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें सेवकों के लिए और सेवकाई के लिए लिखी हुई हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस 28वें आयत को बार बार पढ़ें, मनन करें और इसमें लिखी हुई बातों को सीखने की कोशिश करें। Now in verse 29 and 30, he was talking about after I have departed, after I am gone, what is going to happen. He is talking about the future. और 29वें आयत में हम देखते हैं पौलुस जो है वो भविष्य के बारे में एक बार फिर से उनको चुनौती देता है, और वो बोलता है कि मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद, मतलब मेरे जाने के बाद, पौलुस के उस स्थान से विदा लेने के बाद क्या होगा, उस बात को पौलुस वहां पे उनको आगाह करने की कोशिश करता है। Very painful words Paul is using here. You know, the kind of images that he was using. He says, wolves will enter into you. They will come and they will not spare the flock. That they will be very violent. Okay, they will be very cruel. Okay, see, look at the kind of danger that Paul was warning or giving caution to the church about the future. और पौलुस यहाँ पे बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है, और वो कहता है कि मेरे जाने के बाद भेड़िए जो भेड़िए हैं वो तुम्हारे बीच में आ जाएंगे, और वो तुमको फाड़ खाने की कोशिश करेंगे, वो तुम पर किसी प्रकार की दया नहीं दिखाएंगे, वो दरिद्रता के साथ तुम्हारे झुंड को नाश करने की और तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार के कड़े शब्दों का और कठिन शब्दों का प्रयोग करके पौलुस उस कलीसिया को आगाह करने की कोशिश करता है। And see, when you read this verse or when you hear these words about the wolves, what is the opposite of wolves, and what is how the Lord Jesus was presented? It was the lamb. Jesus said, I'm like a shepherd taking care of the lambs. Okay, sheep, you are like the sheep, and I'm like the shepherd. Okay, that means shepherd and sheep, they're all very gentle, very soft, very caring, very, very like a mother and father. The shepherd will take care of the sheep. That was how the Lord Jesus was. That was how he was taking care of us. Now, opposite things are happening here. Wolves are coming into the church. तो यहाँ पे जब पौलुस ये बोलता है कि भेड़िए जो है वो तुम में प्रवेश कर जाएंगे और तुम्हें नाश करने की और तुम्हें फाड़ खाने की कोशिश करेंगे। अब अगर इसको हम और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो भेड़िए का जो स्वभाव है उसका विरोधाभास किसका स्वभाव होता है? भेड़ का स्वभाव होता है। भेड़िए का स्वभाव जो है वो उग्र किस्म का होता है, लेकिन जो भेड़ होता है वो शालीनता का एक स्वभाव को दर्शाता है, वो उग्र नहीं होता है।
और प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को एक 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 नम्र भेड़ के रूप में प्रकट किया गया है, या प्रभु यीशु मसीह को एक भेड़ों का एक रखवाले के रूप में प्रकट किया गया है, बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक अच्छे चरवाहे के रूप में बताया है, जो कि अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। तो वो एक ऐसा चरवाहा है जो अपने भेड़ों की रखवाली करता है, उस अपने भेड़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। लेकिन यहाँ पे पौलुस बोलता है कि एक भेड़िए के विषय में बोलता है कि जो झुंड को सुरक्षित नहीं रखेगा, लेकिन झुंड को जो है बर्बाद कर देगा। तो इन दोनों बात को हमें जानने की आवश्यकता है। So in the place of care and compassion, cruelty and crudeness will come, will enter. तो जहां पे देखभाल और प्रेम की बात होनी चाहिए, वहां पे हम देखते हैं दरिद्रता और कठिन समय या उग्र स्वभाव जो है वो आने वाला है। And from where will these people will come? Who are they? And verse 30 tells us, they will come from among you, yourself, your own selves will arise men speaking twisted things and draw away the disciples after them from among you. और फिर सवाल ये होता है कि ये लोग कहां से आएंगे, इस प्रकार के भेड़िए के स्वभाव वाले लोग कहां से आएंगे। पौलुस बोलता है 30वें आयत में कि तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बात करेंगे। So now when I'm thinking about this verse 30, I'm just thinking about what is happening in the church today, Christian fellowships. What is coming to my mind? The kind of divisions that are taking place today. One elder is fighting against another elder. To which extent? They don't mind even fighting, going to courts, or dividing the church into two. Few people on my side and few people on your side, and we both are fighting. So that's what we can see here. तो जब इस 30वें आयत को मैं पढ़ता हूं तो मुझे स्मरण आता है और मैं देखता हूं कि हमारी कलीसियाओं में भी कुछ इसी प्रकार से होता है। एक अगुआ या एक प्राचीन जो है वो दूसरे प्राचीन से झगड़ा करता है, उनके बीच में संबंध जो है वो ठीक नहीं है, और उनका झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि वो जाकर न्यायालय में जाकर इसकी सुनवाई के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेते हैं। इस हद तक लड़ने लगते हैं कि उनके मामले जो है वो कोर्ट कचहरी तक पहुंचने लगते हैं। तो इस प्रकार का चरित्र आज हम देखते हैं कलीसियाओं में विभाजन को लेकर आ रहा है। So people are not kind towards one another. Okay, people are not compassionate to one another. There's a lot of hatred, lot of violence, very, very, very horrible. Not only physical aspects, friends, even there are doctrinal disputes. I have been emphasizing on that, telling the truth, telling the doctrine. That is also very important. People are being deviated. Okay, people are being diverted to different truths. तो हम देखते हैं लोगों के बीच में आपसी मतभेद है, आपसी झगड़े हैं, और केवल आपसी झगड़े ही नहीं, लेकिन लोग कई बार वचन को और वचन की शिक्षाओं को और वचन के सिद्धांतों को लेकर भी उनके बीच में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, और इन सिद्धांतों और वचन की शिक्षाओं के कारण भी हम देखते हैं कलीसियाओं में विभाजन हो जाता है, फूट पड़ जाता है। So now verse 21, he starts giving the solution. The first word he says is, therefore be alert, be watchful. इसीलिए इस बात का समाधान, इस परिस्थिति का समाधान जो है वो पौलुस 31वें आयत में देता है, और वो कहता है इसलिए जागते रहो, जागते रहना जरूरी है। So and then be alert and be watchful, and also remember what I taught you for 3 years, day and night, with tears, with lot of hard work, without taking any rest. Please remember what I have taught you. Please don't forget. और 31वें आयत में वो आगे कहता है इसलिए जागते रहो और स्मरण करो, याद करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। मैंने उन 3 वर्षों में तुम्हें क्या सिखाया, उन बात को स्मरण करो। Yes, so be alert, be watchful, and remember me,
how I taught you, how caringly, how like a mother, like a father, I have really brought you up. And I think I can also say here, not only remembering Paul, we need to remember the Lord Jesus, what he did, how he came down from heaven to earth, and how he died on the cross, how he gave up his life. And we need to remember the Lord. When we remember the Lord, I think we'll be very careful. तो यहाँ पे पौलुस बोलता है कि ऐसी परिस्थिति का सामना अगर हम अपनी कलीसियाओं में, अपनी सेवकाई में करना चाहते हैं, तो हमें जागते रहना है, हमें ध्यान देना है और हमें स्मरण रखना है जो बातें पौलुस ने सिखाई हैं, उन बातों को स्मरण रखना है। और न केवल पौलुस और पौलुस की शिक्षाओं को, लेकिन हमें अपने मसीह को, अपने प्रभु को स्मरण रखना है कि वो किस प्रकार इस संसार में आए, अपने प्राण को हमारे उद्धार के लिए दे दिया, उसका बलिदान जो है उसे हमें स्मरण रखना है, उसके प्रेम को हमें स्मरण रखना है। और जब हम मसीह के प्रेम को स्मरण रखेंगे, कोई भी बात हमको विभाजित नहीं कर सकती। I think that's why the part remembering aspect I'm thinking, probably that's why the Lord Jesus gave that Lord's Supper on Sunday. Do it in remembrance of me. He took a bread and he took a cup, and the Lord said about the Lord's table and the Lord's Supper, he said, do it in remembrance of me. This is the concept. When we remember the Lord, what he did, the sacrifice he did on the cross, I think we will be careful and watchful and alert. और जब स्मरण रखने की बात आती है तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को उस अंतिम भोज के दौरान इसी शिक्षा को दिया। उसने वेदी को सजाया और उसमें से उसने रोटी ली, दाखरस लिया और चेलों को दिया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि इस बलिदान को और प्रभु यीशु मसीह के किए गए कार्यों को स्मरण रखो। तो उस संदर्भ में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों को जब वो विदा हो रहे थे उनसे, तो उनको कहते हैं कि तुम स्मरण रखना। यहाँ पौलुस भी उस बात को कहता है, स्मरण रखना। And now comes to verse 32. This is, in my opinion, this is another beautiful verse, verse 32. I can almost compare this as 28. Verse 28 and verse 32 to me, they're important. Here in verse 32, he was saying, now I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up to give you the inheritance among all those who are sanctified. Verse 32. और 32वां आयत जो है वो भी बहुत खूबसूरत आयत है। जिस प्रकार से 28 आयत में बहुत सारी भेद भरी बातें लिखी हुई हैं, 32वां आयत भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए हम 32 आयत को पढ़ेंगे। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए लोगों में साक्षी करने के मिरास दे सकता है। So in such dangerous times, violent times, what is the solution? Where should we go? Where can we go? Nowhere. Go to God and to his word, the word of God. That is the solution. When we devote ourselves to God, when we learn to love God and his word of grace, and this word of God will teach us. It will keep us, it will protect us, it will help us not to go either to the left or to the right. It will help us to go on the straight route in the way of God. Please devote yourself to the word of God. तो जब कठिन परिस्थितियां आती हैं या विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो ऐसे में हम कहां जाएं, किसके पास जाएं? वचन बोलता है कि इन कठिन परिस्थितियों में हम परमेश्वर के पास आ जाएं और उसके वचन का हम सहारा लें, उसके वचन के सानिध्य में अपने आप को कर दें। क्योंकि केवल परमेश्वर का वचन ही है जो हमें परमेश्वर के मार्ग में बना के रखेगा, वो हमें दाएं या बाएं भटकने से बचा के रखेगा, वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और हमारे लिए सीधी युक्तियों को निकालेगा। इसीलिए इन विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन का ही हम सहारा लेना सीखें। So brothers and sisters, never leave the word of God. Don't turn from the word of God. When we commit ourselves to the word of God, the Lord will enable us, he will strengthen our faith. Okay, he will become spiritually strong and will not fall to temptations. We will not fail in times of persecution. The word of God will help us to keep going in the future. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी भी परमेश्वर के वचन से आप अपने आप को अलग ना करें। जब भी आपके जीवन में परीक्षाएं आए, तकलीफें आए या चुनौतियां आए,
आप हमेशा परमेश्वर के वचन को अपना आधार माने, उसी का सहारा लें, वो आपको बल प्रदान करेगा और परमेश्वर का वचन ही है जो आपके लिए मार्ग निकालकर आपको उस परिस्थिति से बाहर ले जाएगा। And from verses 33 to 35, 33, 34, 35, Paul gives another beautiful example of his life about the area of finances, money. और 33 से लेकर 35वें आयत में हम देखते हैं पौलुस अपने जीवन का एक और महत्वपूर्ण और खूबसूरत उदाहरण प्रस्तुत करता है और ये उदाहरण पैसे से संबंधित है कि किस प्रकार उसने धन के मामलों में विश्वास योग्य रहा। Brothers and sisters, and particularly pastors, full-time workers, in the team, in the Bible study today, please keep this in mind. I am also a pastor. I am a full-time worker. Remember always, you and I need to keep up our testimony in the area of money matters and financial matters. भाइयों और बहनों, विशेषकर जो लोग सेवा में हैं और मुझे सुन रहे हैं, आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि हमें अपनी गवाही को पैसे के क्षेत्र में, विशेषकर जब धन की बात आती है या भेंट की बात आती है, तो उस विषय में हमें अपनी गवाही को मजबूत रखना है। Very unfortunately, many pastors, many full-time servants are falling prey to the financial pressures. They left everything when they started their ministry. Okay, when God called them, they left their jobs, they left their income, they left everything. But after serving for some years, 10 years, 20 years, 30 years, they're falling prey to the finances. Very unfortunate. They're working for money. They're treating ministry as business, making money. Very unfortunate. और बहुत दुख की बात है, ऐसे आज बहुत सारे सेवक देखने मिलते हैं जो पैसे के लोभ में अपने आप को गिरा चुके हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़कर एक समय परमेश्वर के पीछे चलना चाहा, बड़े विश्वास योग्यता के साथ इन्होंने शुरुआत की, 10 साल, 20 साल, 30 साल बड़े विश्वास योग्यता के साथ सेवा की, लेकिन उसके बाद धन अर्जित करना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया और सेवकाई को उन्होंने धन कमाने का एक जरिया बना लिया और ये बहुत दुख की बात है। Remember, I would like to just share a personal testimony here for the glory of God and for your benefit. I was qualified. I did my diploma in civil engineering, that is Polytechnic, and later I did my post-diploma in environmental engineering. I was a qualified engineer. I was working as a site engineer, a site supervisor in the construction project. When God called me, I resigned. I left my engineering job in 1991. And from 91 to 2021, for the last 30 years, I have been faithful. I never worked for money in my ministry. और मैं आप सबों के प्रोत्साहन के लिए एक व्यक्तिगत उदाहरण अपने जीवन का देना चाहता हूं। आपको मैं बता दूं कि मेरी जो शिक्षा है, मैंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था, सिविल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी मैंने पोस्ट डिप्लोमा किया था और इस प्रकार की शिक्षाओं को मैंने इंजीनियरिंग से संबंधित इस प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण किया, पूर्ण किया और उसके बाद मुझे अच्छी नौकरी मिली और मैंने 10 साल अपने जीवन को उस नौकरी में दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया तो मैंने उस नौकरी को त्याग दिया और 1991 से लेकर आज तक पिछले 30 साल मैं विश्वास योग्य होकर सेवा करता रहा और कभी भी धन के पीछे मैं नहीं भागा। In the previous organization where I worked, Word and Deed India, it's a big organization involved in crores of rupees. In that connection, I went to different few countries. I went to Singapore, I went to Bangkok, I went to Philippines, I went to Netherlands. Okay, I went to few countries like that, but I will never take any email address of anybody. I will never write any email to anybody in all these 30 years of my ministry. Never a foreign money, never. और मैं भारत की एक बहुत ही बड़े संस्थान में, एक बहुत ही बड़ी संस्था में काम कर रहा था और जब उस संस्था में काम करते हुए मुझे अलग अलग देशों में, नीदरलैंड, फिलीपींस और इस प्रकार के 3-4 देशों में मैं जाया करता था और लोगों से
सेवकाई के लिए, भेंट एकत्रित करने के लिए मैं वहां जाता था, लेकिन कभी भी मैंने अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए कभी भी मैंने धन अर्जित करने की कोशिश नहीं की। ना ही कभी भी मैंने किसी भी व्यक्ति से ईमेल के द्वारा या किसी भी माध्यम से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की कोशिश की। पिछले 30 साल में मैंने कभी भी किसी को अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं लिखा। So getting an opportunity to serve, getting an opportunity to share the word of God, it itself is a gift. It itself is the biggest honorarium. I don't need any other honorarium. Even you can speak to Brother Vijay. This is what I told him about my ministry with you all. और याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना और परमेश्वर के वचन को लोगों को बताना ही सबसे बड़ा प्रतिफल है। और इससे बड़ा प्रतिफल आप पैसे को नहीं दे सकते हैं। किसी भी प्रकार का धन या संपत्ति जो है वो इस प्रतिफल का बराबरी नहीं कर सकता है। और यही बात मैं भाई विजय को भी बताया हूं कि मेरी जो सेवा है, परमेश्वर का वचन का प्रचार करना ही तो सबसे बड़ा प्रतिफल जो मुझे मिल रहा है। Never do ministry. Ministry is never a means of making money. Ministry is always a means for service. Serve people. Serving is the attitude. We read it in verse 18 itself, the first verse. And even in the ending, in closing, Paul is speaking the same language. और याद रखिएगा, कभी भी आप सेवकाई को अपने लिए धन अर्जित करने का माध्यम नहीं बनाइएगा। सेवकाई को सिर्फ सेवा करने का एक जरिया रखिएगा और सेवकाई के द्वारा सिर्फ सेवा करने का उद्देश्य ही रखिएगा। पौलुस ने इसी बात को 18वें आयत में प्रारंभ किया, जहां उसने बताया कि किस प्रकार उसके जीवन का जो उद्देश्य था वो सेवा करना था। और अंतिम भाग में भी हम देखेंगे कि पौलुस उसी अभिप्राय को प्रकट करता है। So Paul never worked for the sake of gold, silver, clothes, anything, without expecting anything. He just served. And Paul is a good example for all of us who are in the full-time ministry today. God will take care of our needs. God will provide our needs. और पौलुस कभी भी सोना चांदी या कपड़े के लालच में सेवा नहीं किया। उसके जीवन का उद्देश्य था परमेश्वर के वचन का प्रचार करना और वो वही करता गया। हमें भी अपने जीवन में इन बातों को महत्व नहीं देना है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में महत्व रखना चाहिए। और याद रखिएगा, इस बात का प्रतिफल जो है वो परमेश्वर हमारे लिए रखा है और परमेश्वर हमें उन आशीषों से हमें उस बात का प्रतिफल, हमारे विश्वास योग्यता का प्रतिफल परमेश्वर देगा। And in verse 36 and 37, after concluding his message, and when he said particularly, now I want to go back and read verse 25, he made one statement, I know that none of you among whom I have gone, you will not see me anymore. So that word they remembered, and it was a very emotional moment, and they all cried, and it was very difficult for them to leave Paul, but finally Paul had to leave. और हम देखते हैं 36वें आयत से कि पौलुस जो है वो अपने संदेश को अंतिम भागों में लेकर आता है और वो उनसे कहता है कि शायद अब तुम मुझे कभी नहीं देखोगे। और जब इस प्रकार से वो भावुक हो जाता है तो वो सब एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं और एक भावुक माहौल जो है वहां पे विदाई के दौरान उत्पन्न होता है। So, as I said, this message is very difficult to preach. It's a lot of emotional involvement is there. It's very difficult to preach about the issues because a lot of exemplary issues are there about Paul. But I kept this text, 20th chapter, 17 to 38, for this study today. And next week, we'll study from 21st chapter. और जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि शुरू में ही बताया कि ये जो आयत है ये आसान नहीं है, क्योंकि इसमें पौलुस के जीवन से संबंधित बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, उसके जीवन के अनुभव यहाँ पे रखे गए हैं और पौलुस की सेवकाई से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण बातें इस आयत में रखी हुई हैं। इसीलिए इस आयत को और मैंने आज के अध्ययन में रखा था, समर्पित किया था कि आज हम इन्हीं बातों को सीखेंगे और आगे की बातों को हम लोग अगले अध्याय में आने वाले सप्ताह में सीखेंगे। Thank you. I hand over the time to Edwin or Vijay.
जी आपका धन्यवाद। आगे का समय भाई एडविन या भाई विजय लेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।